नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान में गजा में फौरी जंगबंदी की हिमायत करता है। सऊदी अरब में हिंद GCC मुश्तरका इजलास में एस जयशंकर का बयान। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी चिराग पा। बैरून मुल्क में मुल्क की छवि मुतासिर करने का लगाया इल्जाम, केस करने की धमकी। वक्फ तरमीमी बिल के जरिए बीजेपी और RSS मुसलमानों के मस्जिदों, कब्रस्तानों और दरगाहों को छीनने की तैयारी कर रही है। औरंगाबाद में असदुद्दीन अवैसी का खिताब। हज 2025 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 23 सितंबर तक तोसी, मजीद तोसी नहीं होगी। मरकजी हज कमेटी की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद हड़ताली डॉक्टरों को ड्यूटी पर जाने से इनकार। कहा, पहले अस्पतालों में डॉक्टरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान गजा में जल्द अज जल्द जंगबंदी की हिमायत करता है। रियाज में आज कलीदी मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान GCC मुश्तरका वज़ारती मीटिंग की इब्तिदा के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 रियासतों पर मुश्तमिल हल के सिलसिले में करारदाद के लिए हिंदुस्तान की हिमायत को दोहराया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी और यरगमाल बनाकर रखने की कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। हिंदुस्तान GCC कलीदी मुज़ाकरात के सदारत क़तर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी की इस मुज़ाकरात में गल्फ़ ताउन कौंसिल के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रियाज में हिंदुस्तानी GCC वज़ीर ख़ारजा की इब्तिदाई मीटिंग के मौके पर खलीजी ताउन कौंसिल GCC और ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा के साथ बाहमी मीटिंग में की। इन मीटिंग्स में बाहमी इलाक़ाई और आलमी मामलात पर वसी तौर पर तबादले ख़याल किया गया। Your Highness, Excellencies, it's a great pleasure to participate in and address the first India GCC ministerial meeting for strategic dialogue. Our meeting today is not just an occasion to reflect on our achievements, but an opportunity to chart an ambitious and far-reaching course for the future. The relationship between India and the GCC is rooted in a rich tapestry of history, culture, and shared values. These bonds have grown stronger with time, evolving into a partnership that spans economics, energy, defense, technology, education, people-to-people ties, and beyond. There are many ways to contemplate our partnership. Let me offer the framework of 3 Ps: people, prosperity, and progress. Our people-to-people ties are the bedrock of our relationship. Close to 9 million Indians work and live amongst you, acting as a living bridge between us. Their contributions to your economic progress are widely recognized. We thank you for ensuring the welfare and their comfort. Our interactions are key to driving prosperity for the GCC and for India. Trade has not only expanded in volume but also in diversity, encompassing a wide range of goods and services that fuel our economies and create jobs. It is important that we think not just for today. The task before us is to invest in each other's future and support each other's continued prosperity. The GCC is a cornerstone of global energy supply. India is one of the world's largest and fastest growing markets. Much of the future demand is going to come from us. Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals. But our relationship goes beyond just transactions. It is built on a foundation of trust, of mutual respect, and a shared vision for the future.
It has a larger goal of advancing progress in a world that is characterized by technological advancements, changing geopolitics, shifts in the global economy, and urgent need to address environmental sustainability. Progress and prosperity require its concomitant security to also be stronger. The Gulf region occupies a central place in contemporary geopolitics. In a world polarized by conflict and tension, we share a commitment to global peace, security and stability. राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं और डलास शहर में 8 सितंबर को इन्होंने महाजिर हिंदुस्तानियों से मुलाकात भी की। इस दौरान दिए गए उनके एक बयान को बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी अमेरिका में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के कायदीन ने धमकी दी है कि वतन लौटने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ। कहाँ गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहाँ गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता, इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाए। काबिल जिक्र बात है कि राहुल गांधी ने हिंद अमरीकी नज़ात तबके को खिताब करते हुए कहा था कि हिंदुस्तानी सियासत से मोहब्बत, एहतराम और इनकिसारी गायब है। इन्होंने हिंदुस्तान को एक नज़रिया मानने के लिए आरएसएस की तनकीद की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस मानता है कि हिंदुस्तान एक नज़रिया है, हम मानते हैं कि हिंदुस्तान नज़रियात के तनाव वाला मुल्क है। यहाँ पे अब आप डिनर खाएंगे, यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है,
फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना? इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। सही बात है ना? थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है। इंडिया में नेचर ही है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है, सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे, तो क्या होगा? ये बीजेपी के लोग करते हैं। प्रॉब्लम इज दीस पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंडिया। वो समझ ही नहीं आती होती ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, उनको मालूम ही नहीं। इट्स लाइक यू इमेजिन, जैसे यहां पे अब आप डिनर खाएंगे, यहां पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना? इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। सही बात है ना? अब थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना? तो इंडिया में नेचर ही है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे, तो क्या होगा? ये बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन क्लियरली, India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages, it's a union of traditions, union of histories, union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं और इन सब में से एक सबसे जरूरी है। एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट इज व्हाट द फाइट इज अबाउट। लेकिन कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार अंदाज में जवाबी हमला भी कर दिया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं की और ना ही कभी ऐसा करेंगे, ये हमारा वादा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को ऐसे इश्यूज उठाने के लिए एक बहाना चाहिए। टीएमसी के रुकने पार्लियामान और फिल्मी स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी के बयानों की हिमायत की है और कहा कि बीजेपी वालों को तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की आदत सी हो गई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ने बैरूनी दौरों के दौरान हिंदुस्तानी अवाम की तरह तरह से हत्या की है। जनरल ऑब्जर्वर की तरह बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी का, चाहे उनकी पार्टी का, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के हमारे कुछ मित्र जो हैं, दोस्त जो हैं, कुछ भी करें राहुल गांधी, या कुछ भी भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत न्याय यात्रा करें और क्रांतिकारी यात्राएं की उन्होंने, और उस पर उन्होंने क्या क्या टिप्पणी नहीं की। यानी यहाँ तक टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, तो आज वही टी शर्ट पहन के इतना रिजल्ट अच्छा लाने के बाद राहुल गांधी और तमाम लोग उसी टी शर्ट में, यूँ कहें कुछ लोगों की नज़रों में छाती पे दाल मूंग रहे हैं, रोज़ आते हैं उसी टी शर्ट में, क्योंकि हर चीज़ पे उनका उनकी टिप्पणी। आज राहुल गांधी का, जो मैंने कहा, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं जनरल ऑब्जर्वर की तरह मैं कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी ने कहा है, वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए।
लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही हैं माननीय प्रधानमंत्री ने। मानता हूँ जोश में कह गए होगा, मानता हूँ शायद अच्छी ब्रीफिंग नहीं होगी उनके पास, या अच्छी ब्रीफिंग पे गौर नहीं किया होगा। तो आज अगर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है और उसको, जबकि ये इंटरनेट का ज़माना है, अब वो बात नहीं रही कि विदेश में क्यों नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था। औरंगाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी और शिंदे हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वक्फ तरमीमी बिल पर शदीद तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि पहले तो बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई, अब मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, खानखा तमाम जायदादें मुसलमानों से छीनने की साजिश की जा रही है। आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातों के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजों को देखकर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ आप लोग QR कोड के जरिए या अपने लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सूबाई हज कमेटियों, हज से वाबस्ता सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों, पासपोर्ट ऑफिस की तातलात, बाज़ रियासतों इलाकों में शदीद बारिश के सबब निज़ाम ज़िंदगी के मुतासिर होने और ख़ुद आज़मीन हज के लिए हज दरख्वास्त फार्म जमा करने की तारीख में तोसी की है। वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन अब 23 सितंबर 2024 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल पर हज सुविधा ऐप के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त भर सकते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद ने ऐलान किया है कि वो आसाम में फॉरेन ट्रिब्यूनल के हालिया फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, जिसमें 28 मुसलमानों, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, को गैर मुल्की करार देकर जबरन हिरासती कैंप्स में भेज दिया गया है। जमीयतुल उलमा हिंद के जारी करदा प्रेस बयान के मुताबिक
मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कानूनी अमल में वाज़ेह है बेकायदियाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर 12 अफराद के केसेस में जिन्हें एक तरफ़ा हुक्म के तहत गैर मुल्की करार दिया गया है। आसाम के बारपेटा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली इन अफराद के केसेस में फ़ॉरेन ट्रिब्यूनल ने कई समातों के बाद उन्हें गैर मुल्की करार दिया। हालांकि इनमें से अक्सर अनपढ़ और गरीब हैं और अदालत के कानूनी मामलात से बेखबर हैं। हैरत की बात यह है कि जिन 12 अफराद को एक तरफ़ा हुक्म के तहत गैर मुल्की करार दिया गया है, उनमें से कुछ लोग इस दौरान कोई नोटिस भी नहीं पहुँचाया गया। जमीयतुल उलमा आसाम के वकला की टीम ने केसेस का जायज़ा लिया है और इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि जमीयतुल उलमा हिंद इस मामले को इंसानियत की बुनियाद पर लड़ेगी और इंसाफ के उसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मगरबी बंगाल के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की मुबीना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि वो मंगल की शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद काम नहीं करेंगे। एहतजाज करने वाले एक डॉक्टर ने अपनी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के बाद कहा, हमारे मुतालबात नहीं माने गए और मुतवफ़ी को इंसाफ नहीं मिला। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और काम पर वापस नहीं लौटेंगे। So far as the doctors are concerned, because we are also concerned about their safety, we have said that their safety shall be protected, but they must go back to work. We are very clear on that. They have not been able to provide us enough safety. So why is he telling that we should be getting back to work? Who is he to tell this without providing us the basic things we had demanded? The state government has been telling that they have initiated every step to provide us safety, but I personally and many of us have not seen so many CCTV cameras installed or duty rooms created. We have not witnessed anything. If CISF is deployed here, what about the rest of the hospitals? Doctors are getting regular threats. There are news which are floating like they are saying that many patients died due to medical negligence or something like this. But this is not true. First of all, we are not afraid of adverse reaction at this moment because we are more afraid for our life. We are here. My co-PGT, the second year co-PGT, she has been brutally murdered and raped. And most importantly, we have been demanding justice for her. And next, we have been demanding safety for her. But in today's proceedings and throughout in this 1 month, we are assured that the evidence have been tampered and we don't even know if justice will be provided to her. And nextly, we have been demanding for our safety. The representation of the state government has been telling that they have initiated every step to provide us safety, but I personally and many of us have not seen so many CCTV cameras installed or duty rooms created. We have not witnessed anything. So, first of all, justice has not been provided. We are not sure who is the culprit. And second of all, they have not been able to provide us enough safety. So, why is he telling that we should be getting back to work? Who is he to tell this without providing us the basic things we had demanded? नागपुर में कल रात एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने 2 दीगर कारों और एक स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार के जख्मी होने की खबर है। हादसे का सबब बनने वाली कार बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावकोले के बेटे संकित बावकोले के नाम पर रजिस्टर्ड है। हादसे पर महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावकोले ने कहा, चाहे गाड़ी मेरे बेटे के नाम पर है, जो भी कसूरवार है इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से लोगों में खौफ का माहौल कायम हुआ है। यहाँ तकरीबन 35 गाँव में इन खूनखार भेड़ियों ने कई इंसानों को निशाना बनाया है, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। भेड़ियों का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं और रात भर जागकर अपने बच्चों और कुंबे की हिफाजत कर रहे हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक 6 भेड़ियों का एक झुंड था, जिसमें 2 नर और 2 मादा भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। इस दरमियान दहशत की अलामत बन चुका 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है और इसे महकमे जंगलात ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पीर की रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद से महकमे जंगलात की टीम ने ससिया चुमानी बरबख्शपुरा गांव से 5वें भेड़िए को पकड़ लिया और टीम 6ठे भेड़िए की तलाश में लग गई है। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है, मगर खौफ अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। हुक्म ने बताया कि 6 भेड़ियों की तलाश थी, जिनमें 5 को पकड़ लिया गया है और एक अब भी आज़ाद है, जिसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा। कितने लोग इस पूरी टीम में थे, कितने बजे से ऑपरेशन चल रहा था, कितने भेड़िए पकड़े गए हैं? देखिए 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम
डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते इसमें हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया एक अल्फा ये है? लंगड़ा नहीं है, हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितने घटनाओं को यही अंजाम दे रहा था क्या? देखिए, मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि ग्रुप में काम करते थे और एक कम होते गए, लेकिन इनकी आदतें ख़राब हो गई थी। आदमी के बच्चों को शिकार करने का इनकी आदतें ख़राब थी। ये जब तक ये सभी छौ पकड़े नहीं जाते तब तक समस्या ये तो अभी बनी छठा रहेगी। नहीं है, जैसे पकड़ा गया तो क्या उसकी जैसे कोई समस्या होगी जो लंगड़ा भेड़िया है? क्योंकि आप लोग तो इतने वक्त से लगे हैं, क्या वो कोई शिकार करता था कि नहीं करता था? देखिए, छठा भी जिसके मुंह में जो आदमखोर हो गया वो आज नहीं तो कल प्रयास कर सकता है। तो इसके पहले कि वो प्रयास करे अगला, हम उसके पहले ही उसको पकड़ के हम जो है जू में भेज देना चाहते हैं। कितनी राहत की सांस है आज ये जो 5वां भेड़िया पकड़ा बहुत गया बड़ी है? राहत की सांस है, बहुत बड़ी राहत की सांस है जो पकड़ लिया गया। आप लोग भी गांव के आसपास से, गांव के लोगों को कितना सुकून मिलेगा? क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि शायद ये सबसे बड़ा भेड़िया था अभी तक आप लोग जो ऑपरेशन में रहे। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई अब सांस जो जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। कितनी राहत मिलेगी आज गाँव वालों को? आज बहुत राहत मिलेगी। आप इसी गाँव के हो? जी। तो कितना अब क्या आतंक में कुछ कमी हो जाएगी? जी बिल्कुल कम होगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। हिंदुस्तान में गजा में फौरी जंगबंदी की हिमायत करता है। सऊदी अरब में हिंद जीसीसी मुश्तरका इजलास में एस जयशंकर का बयान। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी चिराग पा। बैरून मुल्क में मुल्क की छवि मुतासिर करने का लगाया इल्जाम, केस करने की धमकी। वक्फ तरमीमी बिल के जरिए बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के मस्जिदों, कब्रस्तानों और दरगाहों को छीनने की तैयारी कर रही है। औरंगाबाद में असदुद्दीन अवैसी का खिताब। हज 2025 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 23 सितंबर तक तोसी। मजीद तोसी नहीं होगी, मरकजी हज कमेटी की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद हड़ताली डॉक्टरों को ड्यूटी पर जाने से इनकार। कहा, पहले अस्पतालों में डॉक्टरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।